ये भाई वो है एक भाई सामने प्रजाप्रसाद के सामने આ દેશની અંદર સાચું બોલવા માટે એ બધી માણસ જોઈશે તો એ માણસ સાચું બોલી શકશે તો એ બોલે અને હું પછી એને તમને બોલ કોઈ મારી પાસે બીજી ભાષા મને આવડે છે દિમાગ પર આપણે વાત કરીએ તો ખરેખર આપણે ઘરમાં કઈ શું મજા આવશે 28,000 દેશવાઓ વિભાગ 500 બહાર વિભાગ અમે ઘરમાં ઉપરથી શબ્દ કાઢીને ન મળે પણ બધી ઠંડીમાં ઉપરનું ઉતરતું ઉતારી અને તળાવ પૂરી કરવા જેવું લડ્યા છે આપણે ઘરમાં કરીએ તો આપણે ખરેખર આપણે જરૂર છે આવા તો કુંવર તો એ કુંવરનો આપણે વંશ છીએ વંશ છે આપણું કુમાર જાય જેવું નથી પરંતુ આપણે એની કેળવણી કરવી પડશે કેળવણી વગર કોઈ પણ સત્ય નથી ભારતની અંદર અમુક અઠવાડિયામાં એક પ્રજા હતી કે જયારે યુદ્ધ અને એવું લાગે સાહેબ હવે યુદ્ધ એક ઘણી પર છે હોસ્પિટલો સવાલ છે ત્યારે એક રાજાઓ કેસર હતા કે મરું યા મારું અને એવું કેસર હતા પણ ભીમા કોરોનાની અંદર કંઈક અલગ હતું મારું ને મરું નહીં મારું જ એટલે મારીને ખુદ આપી છે કારણ કે યુદ્ધ છે ને મરીને નથી વાત જીવીને જીતા છે અને એવું છે કે સત્સંગ મારે પણ મારવા છે અને આપણે એના વંશ છીએ બરોબર એટલે એ સમય બરોબર તરફ આવ્યો પણ સતત સુરત આપણું વિકસાવવું પડશે અને આ જે પૂર્ણિમા છે એ લડાઈ સુખી છે એનું ઉદાહરણ આજે બાબા સાહેબની જે પ્રતિમા આવી છે એને સરકાર સંસદનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા આજે પ્રતિમા છે એનો શ્રી धन्यवाद रमेश भाई जी जिन्होंने अरवली जिला में आए और हमारे पास बात रखी उनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा कि महिला अग्रणी शिक्षिका मीनाक्षी बहन महेश्वरी जो सब लोग तो जानते हैं तो इस वक्त में आपके सामने बात करेंगे मीनाक्षी बहन महेश्वरी जय बोलनिवासी जय भीम जय संविधान जय धर्माचा नमो बुद्धा आज આપણે જોઈએ છે કે ગાંધીના ખાતે તારીખ 1/1/2026 માં આજે સોલા દિવસ વિજય સોલા દિવસનું આપણે રાખવામાં આવ્યું છે મનાવવા માટે અહીંયા ઓસ્લો ખાતે બાબા સાહેબ આંબેડકર ગ્રીન છે ઘણી બધી સંખ્યા આયોજન છે અને બધા આવ્યા છે અને તમે આવ્યા છો પોતાની જાતિની સુરવીરતા વીરતા અને કઈ રીતે આપણી જાતિ એ 208 વર્ષથી સંઘર્ષ કરી રહી છે એ તમને જાણવા મળશે આ ભીમા કોલેજનો સોલા દિવસમાં જાણવા મળશે કે આ જો આપણા મહાન જાતિના લોકો હતા બીજી બાજુ પેશવાઓ હતા પેશવાઓને મનુવાદી વિચાર ધરાવતા અને મહાન એટલે કે 50 જાતિના લોકો અમને ખબર છે કે અત્યારે આપણે પેલા 208 વર્ષ પહેલા આપણી પરિસ્થિતિ શું હતી એ લોકો કંઈક માનતા પણ મનુવાદી જે પેશવાઓ હતા એ
કેશવને ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે અમે તમને કાંઈ પણ આપશું નહીં. એટલે એ લોકો અંગ્રેજો જોડે જોડાય ને અંગ્રેજોની સેનાઓમાં જોડાઈ ગયા 500 મહારો ને આ બાજુ કેશવ 28,000 કેશવ ને સામે લડાઈ કરનારા 500 મહારો. તમે વિચાર કરો આપણા જાતિના લોકો તાકાતવાળા હોય છે, શૂરવીર હોય છે, એક ક્રાંતિકારી હોય છે. એ આપણે જોઈએ જ છીએ. આટલા વર્ષથી આપણે બધા લડે જ છીએ, હજી પણ લડીએ છીએ. હજી પણ આપણે આપણા હકના અધિકાર માટે લડીએ છીએ. તો 500 મહારો 28,000 કેશવ સામે લડ્યા અને પાછા જીત્યા. ત્યારથી આપણે આ જોઈએ છીએ કે ભીમા નદીના કિનારે ભીમાખેડે ગામમાં આ વિજય સ્તંભ રાખવામાં આવ્યો છે. અને એને હું આજે નમન કરું છું કે આ સૂર્ય દિવસ આપણને શું શીખવાડે છે કે આપણે વીરતાથી લડવું જોઈએ, સૌર્યતાથી લડવું જોઈએ. આપણે હાર માનવાની નથી. તમારો ક્યાંય તમારા ઉપર અત્યાચાર થાય છે, અન્યાય થાય છે, તો આ મારું મને શીખવાનું છે કે આપણે આપણો ઇતિહાસ એ બનાવે છે. તમારે શું કરવાનું છે? તમારે ઘરે નથી શીખવાનું. તમારે આજે પણ તમે ક્યાંય તમારા હક છીનવાય છે, અધિકાર છીનવાય છે, તો તમે એની સામે લડો. બેસી ના રહો, તમારા થાય એટલું કરો, પણ તમે પીછે ના કરો. આ મારો કહીએ તો આપણે શીખ લેવાનું છે વીરતાની. તમે જાણો છો કે વીર સાહેબ દેવજી સાહેબ આ રીતે વીરતાનો પાઠ ભણાવી ગયા છે. તો આપણે પણ આ વીરતાનો પાઠ ભણીને આપણે પણ એને અનુસરવાની આપણે લડવાનું છે. આ ભારતીય સેના માટે છે. દર વર્ષે બધા 9 વર્ષ બનાવે, આપણે વીરતાનો ફરક નથી. વીરતાનો ફરક નથી. એટલે આપણે આપણા જીવનમાં આપણી જાતિ આપણા વર્ષો થયા અત્યાચાર અન્યાય સહન કરતી આવી છે ને આપણે એની સામે કઈ રીતે લડવું છે. કે પોતાની જીત જાતિ પોતાનો ઇતિહાસ નથી જાણતી. એ ખુદ પણ નથી જાણી શકતી. ક્યારે પણ એ પોતાનો ઇતિહાસ જાણો. એ લોકો શું કહેવા માંગતા હતા, શું કરવા માંગતા હતા. આ શું જાણે છે? વિચાર કરો તો 28,000 છતાં પણ લડીને બતાડ્યું. શા માટે? એટલે આપણે પીછે હટતા નથી. આપણે પણ પીછે નથી કરવાનું. ભાઈઓને નથી, બહેનોને પણ પીછે નથી કરવાનું. ક્ષેત્રમાં લડવાનું છે. અને ક્ષેત્રના પોતાના લોકોને અધિકાર મહાનોની જેમ મેળવવાના છે. એટલે સતત આપણે પ્રયત્નશીલ રહેવું પડશે. અને આપણા હક અધિકાર માટે સતત આ સૂર્ય દિવસમાં આ જ શીખવાનું છે. એટલે આપણે સલામી પણ કરીએ છીએ અને નમન પણ કરીએ છીએ મહારોને. અને આજે આપણે એટલું જ વિચારીશું કે નહીં આપણા કોમમાં કે આપણે કોઈ ભાઈઓને બહેનોને કોઈ પણ થાય તો આપણે એના માટે વીરતાપૂર્વક સામનો કરશું. આટલું શીખવા મળશે. જય ભીમ, જય સરિતા, નમો બુદ્ધાય. धन्यवाद मीनाक्षी जी, जो जिन्होंने हमारे बीच में संपूर्ण बात रखी। अभी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे कार्यकर्ता है, काफी दिनों से हमने सुना नहीं है, धनजी भाई निजार, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी बात रखें। हेलो, और તમારે બે મિનિટ તમારે લેવું જ છે? હા, બોલો બોલો. નયા સાલ હે, કાંઈક તો સમજો ગમે તમારે. એક બીજા भले 2 मिनट। ये नया साल महाराष्ट्र में जो लड़ाई उसी दिन मिला, भले ही हम कई तारीखों को नया साल कहते रहते हैं, मगर ये हमारे लिए नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये इतिहास जाना कि हमारे महाराष्ट्र में देशभर को खत्म किया, उस दिन के बाद वहां जाते थे बाबा साहब अम्बेडकर, और इससे पहले तो इस इतिहास को वनवादी लोग दफना कर खत्म कर रहे थे, सिलेबस से निकाल दिया था। और ये शौर्य गाथा किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी को
नहीं चले, इसकी कोशिश में थे। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि हमारे समाज को शूरवीरों की प्रेरणा की जरूरत है, प्रेरणा से आदमी आगे बढ़ता है। तो हमारे लिए ये दिन प्रेरणादायक दिन होना चाहिए। इसका थोड़ा सा इतिहास क्या है कि आप कहोगे मतलब छुआछूत थी, तो फिर महान लोग सिपाही कैसे बने? मगर इसका थोड़ा इतिहास मैं बताता हूँ कि इससे पहले जो छत्रपति शिवाजी का शासन था, पेशवाई से पहले, वो भी शूद्रों का राज था। छत्रपति शिवाजी ने महारों को सिपाही बनाया था, जगह दी। तो ये बात मनुवादियों को, पेशवाओं को हजम नहीं हुई। यदि ये लोग जिनको हम उसका साया तक छूने नहीं देते, वो सिपाही बन रहे। और छत्रपति शिवाजी शूद्र थे, ब्राह्मण नहीं। तो हमको शिवाजी से खुन्नस थी कि ये लोग ओबीसी के लोगों को, जिनका आज हम कहते हैं शूद्र, अति शूद्रों को सिपाही बना रहा है, तो ब्राह्मणों का राज कैसे आएगा? तो वहां से उन्होंने तय किया कि पहले शिवाजी के शासन को खत्म किया जाए। तो उस वक्त इनके पास कोई राजसत्ता नहीं थी, तो शिवाजी की सैन्य में घुसपैठ की और धोखेबाजी से, जैसे पेड़ को दीमक जोड़ के खत्म कर दिया जड़ों से, वैसे शिवाजी के अच्छे शासन को, रैयत के राज को खत्म किया गया पहले। और जैसे ही शासन आया, उन्होंने जिनको आज हम कहते हैं शूद्रों को, ब्राह्मणों ने अपनी सेना से निकाल दिया। वो जो निकला हुआ वहां पे वो सिपाही थे, समझो। तो उस बात पे शक्ति से मनुस्मृति लागू की गई, छीन ली गई। और जो आप कहते हो जानते हो अभी कुछ लोगों को पता नहीं था, ऐसे शासन की स्थापना की जिससे सिपाही की शक्ति से लागू की उनकी हुई मनुस्मृति, क्योंकि दूसरी कोई जाति ही नहीं थी पूरे शासन में, यहाँ तक कि क्षत्रियों को भी नहीं रखा था। ऐसे में वो जो सिपाही थे, अभी इससे पहले थोड़ी घटना में बता दूं, जैसे ही शिवाजी का शासन खत्म हुआ था, आसपास के मराठा राजा पेशवाओं के खिलाफ थे, हो गए। अरे उनसे पेशवाओं को डर लगा था। 1802 में अंग्रेजों से पेशवाओं ने संधि की कि मराठों से हमको डर लगता है, ये कभी भी हमला करेंगे, इसलिए हमारी रक्षा आप करिए। देखो, ये कोरेगांव की लड़ाई से पहले अंग्रेजों से इन्होंने गठबंधन किया था। भले ही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग अंग्रेजी सेना में जाकर सिपाही को खत्म किया, इससे पहले इनका गठबंधन था। तो ऐसा करके ये जो पुराने सिपाही थे जिनको निकाला गया था, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार नहीं थे। वह क्या था कि जब ये लोग ने ऐसा बैठे पे आगे अभी सैनिक है, तो क्या पेशवाई में हमको जगह मिलेगी? उस समय इनका पर्चा ठुकरा दिया गया और अपमानित कर बोला, आप नलायक, आप लड़ नहीं सकते। जैसे आप कहते थे आप में मेरिट नहीं, वैसे उन सिपाहियों को अपमानित किया गया था कि आप मेरिट नहीं, आप लड़ नहीं सकते, मजाक उड़ाया गया था। तो ये जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अभी यहाँ अंग्रेजों से इस समय तक पेशवाओं का जो संबंध था वो बिगड़ चुका था। अंग्रेजों को सिपाहियों की जरूरत थी, हमारे लोगों को एक मंच की जरूरत, क्योंकि वो जो काल था वो राष्ट्र या भारत या इसके लिए कोई नहीं जा रहा, मगर हमारे लोग शासनकर्ता के लिए नहीं, कलंक को मिटाने के, हमारे लोग आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। वो जो अपमान का जुनून था भीतर, वो उनको लड़ाना।
ये सामाजिक जिम्मेदारी और मान सम्मान की ताकत से बर्बाद कर रही है। अभी यहाँ पर ये जो लड़े और वो लड़े थे सिपाही के पेशवाई अपना शासन बचाने चाहते थे और हमारे लोग हमारी गुलामी करना चाहते थे। यानी तलवार से पेशवाई खत्म हुई और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम से मनुस्मृति खत्म हुई। तो ये जो लड़ाई है हमें किस संदर्भ में लेनी चाहिए कि लड़ाई हुई क्यों और उन्होंने बलिदान दिया, क्या हम उस बलिदान को खत्म कर रहे हैं या समाज को लाभ दे रहे हैं? क्या हम बलिदान की कीमत चुका रहे हैं? तो ये जो बलिदान दिया जिन लोगों ने, हम तो जान की बाजी लगाने को नहीं कर रहे हैं। अभी तो लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र में हमारे लोगों को समन्वय और हुनर अगर आप देते हो तो जो अभी वापस पेशवाई करने जा रही है संविधान को खत्म करके, उस पेशवाई को वापस हमें खत्म करना होगा। अभी तो तलवार नहीं चलानी है, ये दिमाग चलाना है और अपना हुनर चलाना है और इकट्ठा होना है और इन बलिदानों को हम न्याय देंगे। हमारी जिम्मेदारी क्या? अब ये तो गए, तो इनका बलिदान फैल न जाए, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, इकट्ठा आना होगा और ये लड़ाई हमें उनसे लड़नी होगी। चाहे किसी भी तरह का वातावरण बनाया जाए, हमें भाईचारा पैदा करना होगा। ये हम उनसे आज प्रेरणा लेंगे। इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जिन्होंने अपनी बात अच्छी तरह रखी। अभी मैं आमंत्रित करूंगा विनोद भाई गवाजा साहब, ये दाखिल करूंगा बात करने के लिए। सबने जय भीम। બધા જ મિત્રોને સૌને દિવસની શુભકામના। બોલનિવાસી સંસ્થા મંચના માધ્યમથી મારા અનુભવોને સર્વને વિજયસૂરીની શુભકામના। બધાને પૂર્ણતા અભ્યાસ કરી કેશવ વખતે આપણા મહાન હોય, આપણા પુરુષ હોય, આપણા મહાપુરુષોને યુદ્ધ કર્યું, બલિદાન કર્યું। મૂળ સમજો આજનો જે મૂળ હેતુ છે એ હોય છે એના માટે મેં એક સૂત્ર આપ્યું કે જો अपना विकास नहीं करती वो अपना भविष्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकती। तो આ અત્યારે જે મૂળ મૂળ હેતુ હોય છે કે આપણી જે સમાજ છે એ સુસુપ્ત અવસ્થામાં જે તસ્વીરી સમાજ છે એને જાગૃત કરવા માટે થઈ આ રીતના પ્રોગ્રામ છે જેમાં આપણે સૌ દિવસ છે તે આપણું છે, આપણે નવા વસ્તુ ઉજવણી શિક્ષા અંગતનું નવું વર્ષ છે એક્ટિવિટી કરીએ आपस में ये ना वस्तु આપણા માટે તો 100 દિવસ અતિ મહત્વનો દિવસ છે। આપણા માટે જાગૃતતા લાવવાનું જે ઉદ્દેશ્ય કામ કરી રહ્યું છે, આપણે બધા સાથે મળી એમનો જે એજન્ડા છે એને સાર્થક કરવા માટે થઈ આ વખતે વિષય છે એનાથી વધારે વિષય આવતા વર્ષમાં પણ આનો વિષય તરીકે લઈ આવી જે આપણો ઇતિહાસ છે એ આપણે સૌને જાણ કરીએ તો એ લોકોને ખબર પડશે કે આપણો સાચો ઇતિહાસ શું છે। જેમ કે વાત થઈ કે બધાને મિટાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી છે આપણા ઇતિહાસની, તો આપણા ઇતિહાસને તો આપણે જાગૃત કરવો પડશે, આપણે બધાને જાણવું પડશે કે આપણો સાચો ઇતિહાસ શું છે। આપણો સાચો ઇતિહાસ આપણે સમજીએ ને તો આપણા ઇતિહાસ એટલા બધા ગૌરવપૂર્ણ છે કે તેની કોઈ સીમા નથી। તો આપણે જાગૃતતા આપણા આવી જાય, આપણને ખબર પડી જાય ને તો આપણે જે ગરીબ કમ્યુનિટી છે ગરીબ તો ના જ બનીએ, કારણ કે ચૂંટણી સમયે વોટના સમયે આપણે ગરીબ બની જઈએ છીએ, પછી આને આપણે ત્યાંથી ગરીબમાંથી ગરીબ બનાવી નાખીએ। તો તમે પહેલા ગરીબ શું કામ બનો છો? શું જરૂર છે ગરીબ બનવાની? તમને આટલા બધા અધિકારો તમને આટલી બધી તકો આપી છે, તમે ઉપયોગ કરો, જાગૃતતા લાવો અને પોતે પણ જાગૃત થઈને સમાજમાં એક સંદેશો આપો કે આપણે કોઈ ગરીબ નથી કે કોઈને નીચે દબાયેલા કે કચડાયેલા નથી। જ્યાં સુધી દબાયેલા કચડાયેલા નહીં અને ત્યાં સુધી પૈસા પાપા કરતા રહેશે।
बरोबर तो आपण जे समजा माध्यमથી જેમની કે વાક્યો એ બધા હું તો વાપરવાનું જય ભીમ જય સંવિધાન જય સોવિયત યુનિયન धन्यवाद विनोद भाई जिन्होंने अच्छी तरह से बात की। पिछले साल हमने खानसा में जगाधरी में ये कार्यक्रम थोड़े दिन मनाए थे। आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ मना रहे हैं। अगले साल हो सकता है पूरे दक्षिण में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अगली कड़ी में मैं हमारे कार्यकर्ता जो नवीन भाई जरूरत किया मैं उनका अनुरोध करूंगा कि वो आए और गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। नवीन भाई जुड़ गए। साथियों निवासी जो निवासी सब जो लेने के लिए थोड़ी व्यवस्था आगे थी काफी खुशी हो रही है कि आज हम एसटी ओबीसी इस जगह पे साथ में आए हैं। जय बोलो साथियों आज का दिन मैं तो बोलता हूँ भारत के लिए नहीं विश्व के लिए एक सौर्य है। क्योंकि साथियों आज जो बड़े कितने लोग थे उनकी आजादी का दिन साथियों न्यूज से आते हैं और जाते हैं लेकिन हम मूल्य का जो नया दिन है वो आज तो मेरे साथियों आज के दिन हमको शपथ लेनी होगी कि हमारे जो महान थे महान नहीं उसमें एसटी और ओबीसी में लोग थे जो दबे पिछले लोग थे जो पेशवाई के पिछले दबे थे साथियों को सोचना होगा कि कितनी दर्दनाक हो नजर होगा जिन्होंने 5,500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का कुचल दिया। साथियों वो दर्दनाक नजारा हमको याद करना होगा। साथियों ऐसा नहीं है ये नजारा आज भी नहीं है आज भी ये नजारा जिंदा है देखने वालों को देखना चाहिए क्योंकि आज भारत में एससी ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार की व्यवस्था चालू है लेकिन उस टाइम जो हमारे महान शहीद थे उन्होंने देखा कि हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें हमको याद नहीं करेगी आने वाली नस्लें हमको याद नहीं करेगी इसलिए उन्होंने एक मान लिया कि पैसा को हम खत्म करेंगे लेकिन साथियों उनके साथ कहना पड़ता है कि आज की पेशवाई जिंदा है वो हमको देखना है यदि पेशवाई को खत्म करना है तो एक मंच में आना पड़ेगा और एसटी ओबीसी को एक कारवा बना के इस पेशवाई को खत्म करना पड़ेगा। साथियों ये जो हमारे बना रहे हैं वो भाव से बदौलत है। साथियों 2018 में हम कुछ दिन खेल के आनंद में हम सब साथ में गए भारत मुक्ति मोर्चा और भारत डे का एक कार्यक्रम हो गया था उस दिन से ये कार्य चालू है। साथियों आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ इस थोड़े दिन को उजागर करने के लिए और आने वाले दिनों में अगर हमको निवासी समाज को इस गुलामी से आजाद करना है तो ऐसे शरीर पैदा करने पड़ेंगे और वैश्वन को खत्म करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं आज पेशवाई मनोरंजन को जो अपने हिंदू संगठन बजरंग दल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में हम टीवी में देख रहे हैं अत्याचार बढ़ रहा है अन्याय हम बदलाव के साथ आज तो संविधान है 200 साल पहले संविधान नहीं था 200 साल पहले संविधान नहीं था फिर भी इसी में उन पैसा को खत्म किया आज तो संविधान है क्यों डरो क्या होगा क्यों डरो ऐसी मानेगी जब उन्हें पहले से कहो बाहर निकलो और दिन बेईमानों से कम लो कोई आपको कुछ नहीं करेगा क्योंकि 500 मारों में तुम लोग को खत्म किया था आज उनके पास संविधान है मानवादी लोग संविधान खत्म करे हमको जगाना पड़ेगा ठीक है नहीं क्योंकि तो दर्द है और ये दर्द आपको खत्म करना पड़ेगा
साथियों आज हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल बंद हो रही है क्योंकि भगवान राम को लगाते हम स्कूल की लागू करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। साथियों इस संविधान को हमको बचाना होगा और बेईमानों से बचाना होगा। साथियों यदि हम आज से बाहर हो अभी सबकी सजा नहीं देना है, एक साल आना पड़ेगा से और माइनॉरिटी को और आपको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों आज संविधान है पर संविधान नहीं रहेगा, इन्हें दारू और आगे मन की आगे कब पता चलेगा। आज हमारे एसपी एससी ओबीसी के लोग तो ओबीसी कोई नेता है विधान को सत्य है तो संसद है ऐसा ही नहीं बोला तो संविधान की बदौलत से कम संविधान रहेगा। तो आज हमारे ऑफिसर हमारे नेता हमारे कानून के सभ्य हमारे संसद मंत्री रहने के साथियों हमारे साथियों ऐसा लग रहा है हमारे एमपी को हम ऐसे ही बन गए संविधान की बताओ तो गुलामी करना हम आपकी और साथियों गुलामी छोड़ दो। जब हम बाहर निकलेंगे ऐसे ही मारो की तरह तुम्हारा बदलाव करूँ करेंगे जब हमारे संविधान को छुआ वैसे ही बाहर मांगेंगे। साथियों ऐसा बोलकर मैं तुम्हारे को विनती करता हूं जय निवासी जय संविधान जय संविधान। धन्यवाद। धन्यवाद जिन्होंने अपनी बात अच्छी तरह से रखी। अभी मैं अनुरोध करूंगा आज की सभा का अध्यक्ष के नारायण गंधर्वा मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय में बात करें। हेलो हेलो साथियों आज 1 जनवरी 2026 पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। उस जश्न में 1 जनवरी 1926 को भारत के मूल निवासी अर्थात एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी लोग अपना 100वें दिन मना रहे हैं। इस 100वें दिन मूल निवासी संघ के माध्यम से एक सामाजिक वैचारिक क्रांति यह मंचन लोगों ने कोई भाषणबाजी के लिए नहीं बनाया और ना ही कोई ये दलितों का आंदोलन है। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग और प्रयोग करके मूल निवासी बहुजन समाज में एक वैचारिक जनचेतना निर्माण हो, इसके लिए मूल निवासी संघ के माध्यम से आज के 100वें दिन पर हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। साथियों आपको जानकारी होगी कि हम जिस भूमि पर रहते हैं भारत में आज भारत विपरीत परिस्थिति में जी रहा है। इसके पर ध्यान केंद्रित करो। भारत एक विपरीत परिस्थिति में जी रहा है। जो लोग न्याय को लोकतंत्र को मारने वाले जो लोग हैं वो न्यायिक संघर्ष कर रहे हैं। जो भी सरकार ने उसको अधिकार दिया। अभी 5-8 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बीजेपी का एक एमएलए 17 साल की बच्ची पर रेप किया। रेप करने के बाद जो मौलिक जो अधिकार था करने का, उसके बाप को भी मारा गया, उसकी फैमिली को भी मारा गया।
न्याय देने के लिए कुछ आंबेडकरवादी लोगों ने न्यायपालिका में गए, जज भी दिखे हुए निकले तो ये हमारे भारत देश में ये घटना बन रही है। ये परिस्थिति को ध्यान में रखकर हमें क्या करना होगा? हमें केवल ये जो गुलामी की जंजीर के तोड़ने का सिद्धांत क्या हमारे महापुरुषों ने अपनाया? 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में जो घटना बनी, और 500 योद्धाओं ने कोई अपने लिए जान की बाजी नहीं लगाई। आपको शायद नई जानकारी लगती होगी कि नहीं 1818 पूरा हो गया, अभी छुआछूत नहीं है, मनुस्मृति का राज नहीं है, गलत ब्रह्म जी रहे हो। भारत में पैरेलल 2 व्यवस्था चल रही है। एक तरफ भारतीय संविधान लागू है, दूसरी तरफ मनुस्मृति भारत में थोपी जा रही है। 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध हुआ वो युद्ध खत्म नहीं हुआ। जो 500 शूरवीरों ने, बहुत सारे लोग जानकारी ये भी रखी कि 500 योद्धाओं में बाजीराव पेशवा से पहले मिले, जिस बाजीराव पेशवा से बात की कि हमारी सेना आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और मांग क्या रखी कि यदि पेशवा का राज आ जाएगा तो मनुस्मृति को खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? साथियों, हम इंसान होने के बावजूद भी हमारी वैल्यू ना के बराबर थी, हमारे से अच्छा जानवर था, जानवर थे। महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं था। वहां में जो अछूत मानने वाली जो जातियां थी, उनका तो पंचा भी स्पर्श कोई कर नहीं सकता था। यदि अछूत जाति का आदमी जमीन पर थूकेगा, उस जमीन पर यदि पैसे अर्थात सवर्ण लोगों का पैर पड़ जाएगा तो भी वो अंत में ले जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। इसके लिए उनको गले में हांडी डाली, उनके पैर मतलब जमीन पर ना छपे, इसके लिए झाड़ू डाला गया। हम लोग पिछले 25 साल से समाज में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को जब हम बात करते हैं तो उनको ये नई बात लगती है कि यह व्यवस्था केवल पुणे तक सीमित नहीं थी, पूरे भारत में फैली हुई थी, अर्थात मनुस्मृति पूरे भारत में लागू थी। और पेशवाई राज का जो मनुस्मृति लागू करने का जो सिद्धांत है पूरे भारत में लागू थी। हम जिस भूमि पर रहते कच्छ में भी हमारे लोगों को तालाब में पानी पीने का या भरने का अधिकार नहीं था। बुजुर्ग से पूछो, बहुत बड़ी हालत थी। समाज को जगाने के लिए गांव में जाता था, तभी मेरा प्रैक्टिकली अनुभव हुआ। खावड़ा साइड में एक गांव में फील्ड वर्क करने के लिए गए। ये मैं पुरानी बात नहीं करता हूँ, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ। गांव के लोगों को जानकारी जब थी, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतिहास की जानकारी थी, तो उन्होंने बताया कि नारायण भाई और भारत की बात छोड़ो, हम जिस गांव में रहते हैं तो गांव में पानी का कनेक्शन नहीं है। भूल से टैंकर आता है हमारे गांव में। जब पानी टैंकर में आएगा तो वो टैंकर में हमारे गांव के 100 लोग पानी भरेंगे पहले, फिर हमारी बारी आती थी भरने के लिए। वो हमारी महिला बोल रही है, वो महिला बोल रही है कि जब हमारी बारी आएगी तो 100 लोग इकट्ठा हो गए कि आप पानी पिएंगे तो हमारे जानवर प्यास से मर जाएंगे। तो पानी भरने के लिए नहीं देते थे, क्या करते थे? जो पानी पीने का जो मतलब जगह बनाई थी जानवरों के लिए, वो बचा हुआ टैंकर
उस तालाब में डालते थे, उस जगह पर डालते थे, अवारे में। साथियों, आंख में आंसू, ये पढ़े लिखे लोग जो सिटी में रहने वाले लोग हैं ना, गंभीर समस्या है। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। वो सिपाही ने बताया कि एक तरफ जानवर पानी पीते और दूसरी तरफ हम पानी पीते थे। ये सच की बात है, कोरोना से पहले की बात है। खाली जय भीम जय भीम जय भीम मामला यहाँ तक सीमित नहीं रखना है हमें। समाज की परिस्थिति क्या है उसके ऊपर एनालिस करना होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि मनुस्मृति का राज केवल पूना के पेशवाई ब्राह्मणों ने लागू नहीं किया, पूरे भारत में लागू था। अनटचेबली पूरे भारत में है, अभी भी जारी है। इसके लिए साथियों हमें क्या करना होगा? इसके लिए फोटो कॉल करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। आज भी एक तरफ भारत में बहुसंख्यक जो लोग हैं, जो शासक वर्ग है, जिनके पर लोकतांत्रिक सत्ता पर अनियंत्रित सत्ता है, गांधी जी, वो लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि भारत में संविधान खत्म हो और मनुस्मृति का राज लागू होना चाहिए। चालू हो गया था। दूसरी तरफ जो परिवर्तनवादी लोग हैं उनकी संख्या कम है, वो बोल रहे हैं कि हर हालत में मनुस्मृति का राज नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने या संविधान के रचयिता ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में थी, उस संविधान के माध्यम से भारत का लोकतंत्र चलना चाहिए। यह आज की तारीख में संघर्ष चालू है। चलो हम आज से ही तय करते हैं कि हमें क्या चुनना है। मैं मनुवादियों को यह खुला चैलेंज करता हूं, जो शर्त देता हूं कि यह परिस्थिति आपको तय करना है कि आप भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। हम उनको खुली चुनौती देते, लागू करो। इतनी आसानी से लागू नहीं करेंगे, उनको मालूम है धीमा पड़ेगा। केवल संख्या 500 और मनुस्मृति को मानने वाले 28,000 सैनिक। कल्पना करो साथियों, युद्ध के वक्त सबको मालूम होगा कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन 500 जने को यह समझाया कि आपकी सैनिक बन जाएगी। सामने 28,000 है, कैसे आप युद्ध लड़ोगे? इतिहास की जानकारी लेंगे कि हमारी ताकत, काम का जुनून क्या होता है। जब इतिहास पढ़ेंगे बीमा पड़ेगा तो 28,000 पैसे नहीं थे, 30,000 पैसे थे। 30,000 पैसे सेना इकट्ठा हुई युद्ध के लिए और हमारे लोग 500 इकट्ठा हुए और उन 500 में से 2 जो लीड करने वाले लोग थे, एक नागनाथ और दूसरा सिद्धनाथ। 2 ऐसे बंदे थे, इन 2 जने का नाम सुनते ही 30,000 पैसे ब्राह्मणों में से 2,000 भाग निकले कि नहीं, वो जो 2 जने हैं वो हमको भारी पड़ेंगे, डर के मारे भाग गए। बाकी बचे 28,000। 28,000 पैसे ही है। तो हमारे लोगों ने शर्त रखी कि हमें केवल मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीना है। अगर ये शर्त आप मंजूर करेंगे तो हम आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। बाजीराव पेशवा ने यह शर्त नहीं मानी और जवाब दिया कि पेशवाई राज में आप अछूत हो तो अछूत ही रहेंगे। आपके कमर में झाड़ू रहेगा तो रहेगा, गले में आंधी रहेगा तो रहेगी। इसके लिए युद्ध हुआ। वो युद्ध पूरे भारत भूमि के लिए एक निर्णायक परिस्थिति। हम पर जो आज अत्याचारी के जो शिकार थे, जो आजादी से घूम रहे हैं ना, वो ज्यादातर से उस घटना को जाते, क्योंकि मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग थे पूरे भारत में डर गए।
इतिहास में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ, 500 वीर योद्धाओं ने जब 28,000 पेशवाइयों को कचूमर बना डाला और तय किया कि अभी पूरे भारत में जिधर भी पेशवाई का राज है उनको खत्म करो, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। जब भीमा कोरेगांव की नदी से वो लोग शस्त्र लेके हमारे लोग आगे बढ़े, तो पेशवाई राज का एक नियम था कि पेशवाई का राज जिधर भी होगा तो उधर उस गांव में फ्लैग लगा हुआ, झंडा लगा हुआ होगा, ताकि लोगों को पता चले कि इधर पेशवाई का राज है। जैसे ही पेशवाइयों को पता चला कि इन 500 शूरवीरों ने तय किया कि अभी हम लोग गांव में निकलेंगे, डर के मारे पेशवाइयों ने अपना फ्लैग नीचे उतार दिया था, ताकि उन लोगों को पता ना चले कि इधर पेशवाई का राज है। इसके लिए मैं कहता हूं कि हम भी उनको शर्त देते हैं। देखो, 500 वीर योद्धाओं ने युद्ध लड़ा, मर गए, मगर उनकी नस्ल ऑल इंडिया में जिंदा है। अभी हमने 500 नहीं है। दूसरी बात कि वो 500 शूरवीरों की नस्ल अभी केवल पुणे में नहीं है, भारत के 32 राज्यों में जीवित है। हम भी मानते हैं कि 28,000 पेशवाइयों मनुस्मृति का रोग लाना चाहती थी, वो केवल पुणे में नहीं है, पूरे भारत में है। मालूम है हमें। फिर भी यदि वो मनुस्मृति का राज लेना चाहते हैं तो वही खुमारी है। जो ये जी मैंने बताया ना कि 56 का सीना, अभी 56 का सीना नहीं, उसका डबल हो गया। आ जाओ, लोकतंत्र को नहीं माना है, आ जाओ। वो उनको मालूम है कि ये खतरे की घंटी ऑल इंडिया में हमारे लिए बनी हुई है। ये इतिहास की जानकारी प्रत्येक समाज के लोगों को, खास करके नौजवानों में पता चले कि भीमा कोरेगांव युद्ध है क्या। साथियों, कल्पना करो कि 1 जनवरी 1818 को घटना बनी। बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे भारत का काम, रात दिन 1 घंटा भी फ्री नहीं टाइम उनके पास। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर उन वीर जवानों को सलामी देने के लिए अपना सब काम छोड़कर उधर सलामी देने के लिए जाते थे। 16 दिवस तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा लेते थे। ये इतनी गंभीर घटना है। जब अंग्रेजों को पता चला कि, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत केवल भारत में नहीं थी, अलग अलग दूसरे कंट्रियों में भी थी, जब पता चला कि कौम के प्रति ये इनमें कट्टरता, कुमारता, ताकत जो है वो हमने पूरी दुनिया में नहीं देखी, अंग्रेजों ने तय किया कि इन शूरवीरों का इतिहास नष्ट ना हो जाए, इसके लिए उनकी याद में उन 500 शूरवीरों का नाम का एक स्तंभ ब्रिटिश हुकूमत ने उधर बनाया और उस समय से सिलसिला ये चालू है। हमारे लोग उधर जाते हैं, उससे प्रेरणा लेते, नौजवानों को सलामी देते हैं। हम लोग भी अपील करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम कार्यक्रम लेंगे तो ये केवल हम अकेले नहीं, हम परिवार के साथ हैं और हम भी जवानों को सलामी दे। हमारे प्रेरणा के स्रोत है। दूसरी तरफ यदि मनोवादी लोग हमारे पर जबरदस्ती प्रेशर करेंगे तो वो भी हमारी तैयारी है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने के लिए तैयार है। तो हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हमारी युद्ध करने के लिए तैयारी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जानकारी से क्या होगा। जानकारी से दुश्मन डरेगा। ये आप लोग जो सुन रहे हो ना, मैं नहीं चाहता कि इतिहास की जानकारी आपके पास मिले, आपके पास पहुंचे, क्योंकि जैसे ही जानकारी आपके पास मिलेगी तो आपके पास भी क्रांतिकारी विचार का निर्माण होगा। आप अपने बच्चे को भी ये क्रांतिकारी जानकारी देंगे।
बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि विचारों में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज में विचारों में परिवर्तन हुआ तो उनके आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। आचरण में परिवर्तन होगा तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा तो व्यवस्था में परिवर्तन होगा। केवल विचारों के। इसके लिए साथियों मूल निवासी संघ के माध्यम से हम लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बहुसंख्यक जो वर्ग है, ये खुले अम्बेडकरी आंदोलन अर्थात हमारे मूल निवासी जो महापुरुष थे, इतिहास में जो मतलब हमारे लिए जो आजादी की जंग लड़ी, उन आजादी की जानकारी प्रत्येक मूल निवासी बहुजन समाज में घर घर जाए। साथियों 2026 चालू है, 2026 में PS4 के माध्यम से हम लोग घर घर संविधान की जानकारी देने के लिए हम लोग अलग अलग गली मोहल्ले में जाते हैं, जाएंगे, आपके पास भी आएंगे। उसका प्रमुख कारण यह है कि आपने अक्सर देखा होगा लोकतंत्र में कि हमारे खास करके पॉलिटिकली लोग चुनने के बाद भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं। हम भारत के लोग, है ना, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। नेता लोग शपथ लेते हैं मगर उस शपथ का भी उल्लंघन करते हैं और भारत में विद्रोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको चुनने वाली जो प्रजा है उसको ही मालूम नहीं है कि भारत की शपथ है क्या। संविधान में हमारी भी कुछ हक मिले हुए, उसके साथ साथ हमारी कुछ फर्ज भी है। केवल हक लेने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो जिम्मेवारी है, ड्यूटी जो है संविधान में, लोकतंत्र में हमारे ऊपर जो ड्यूटी लगाई उसको भी जानना जरूरी होगा। जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान की शपथ लेगा, उस शपथ में क्या लिखे हुए है वो जानकारी मिलेगी, तो जो शपथ का उल्लंघन करेगा तो वो जागरूक नागरिक उसका काम पकड़ सकता है। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे PS4 के माध्यम से कि हम घर घर जाके कम से कम नागरिकों को एक भारत का संविधान की शपथ दे रहे, शपथ से लोगों की जानकारी उनको पहुंचाए कि देखो भैया संविधान की शपथ ये है, हमारा अधिकार भी है और हमारे मूलभूत अधिकार भी ये है, हमारी फर्ज भी ये है। ये जानकारी के लिए हम लोग अलग अलग तहसीलों में जाएंगे और समाज को एक वैचारिक क्रांति के मोड़ पर लाके खड़ा कर देंगे। इस कड़ी में मैं इतना ही कहूंगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। अभी में हमारे यहाँ जो गुरु नानक साहब का जो गुरुद्वारा गांधीधाम में बहुत बेहतरीन किस्म का बना हुआ है, उसके कुछ प्रतिनिधि हमारे आए हुए हैं, हम उनको भी सुनेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, हमारे क्या है, तो संचालक महोदय को मैं कहूंगा कि तो मैं अपनी बात इधर ही समाप्त करके अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नारायण भाई, जिन्होंने अपनी बात विस्तार से रखी और हमको जानकर बनाया। तो हम समाज जाएंगे और घर जाएंगे और दूसरी मास्टर को जिसे कहा जाता है कि सिख समुदाय, सिख समुदाय से हमारे मोहनदेव जी और जसपाल सिंह जी हमारे बीच में है, तो हम उसको अनुरोध करेंगे, हम इस तरह के मन से कि अपना वक्तव्य रखेंगे। धन्यवाद जी। आज सब एक विशेष कारण जिनके दिलों में कहीं ना कहीं
जो इस मुल्क को ऊपर कुछ लोगों का, कुछ विदेशी लोगों का कब्जा आना चाहता था, उसको उनसे आजाद कराने के लिए कुछ संघर्ष किए गए। उन संघर्षों में से एक संघर्ष की को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए जिन्होंने हम कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हमें सोचने की जरूरत ये है कितने लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। यहाँ मैं कहूँगा कि ये मुल्क एक बगीचे की तरह है। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। बगीचे और जंगल में बहुत छोटा सा अंतर है। फूल, बूटे, पेड़ जंगल में भी होते हैं। फूल, बूटे, पेड़, लेकिन दोनों में अंतर एक होता है कि जो बगीचा है उसका एक मालिक होता है, उसको संभाल के उसको बगीचा रखता है। अगर माली उसको बगीचा ना बनाए तो वो बगीचा नहीं होगा। तो जो हमारे कुछ वीरों ने एक ऐसा संकल्प सोचा कि क्यों ना जो बांध बांध के यहाँ पे फूल है उनको बगीचा बना के रखा जाए। उस संकल्प को भेंट करते हुए उन्होंने कईयों ने अपनी जाने तक गवा दी। सिखों ने खास करके, जिनको इतिहास गवाह है कि सिखों ने बहुत बड़े योगदान इस मुल्क के लिए, या आप लगा लो कि लोगों की बौद्धिक आजादी के लिए भी जो है करे। पर आज हमें विचारने की जरूरत ये है कि आज वाकई जिन संकल्पों के लिए उन वीरों ने, उन योद्धाओं ने कुर्बानियां दी, क्या आज वाकई वो बगीचा बगीचा बना हुआ है? अगर नहीं तो उसके कसूरवार कुछ ना कुछ अपने आप को भी मानना चाहेंगे और कुछ बगीचे के जो माली है वो भी कसूरवार। अगर माली इस बगीचे को बगीचा बना के नहीं रख सकते तो हमें कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है। तो आज हम वाकई अगर उन वीरों के निर्णयों पर आज हम अगर खड़े होकर उनको याद कर रहे हैं तो ये हमारे मन के अंदर हम जिक्र जरूर करें कि अगर इस बगीचे को फिर जंगल बनाने की तरफ लिए जाने की अगर प्रेरणा, अगर कुछ यत्न हो रहे हैं तो हमें उनको रोक के वापस इस बगीचे को बगीचा कैसे बनाए रखना है उसके लिए हमें यत्नशील होना पड़ेगा। इतनी बातें करते हुए अपनी बातों को संकचूंगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर जी। हमारे वीर संतोष कुमार राठौर जी, प्रिंसिपल जी आ गए हैं तो मैं उनसे बुलाऊंगा, डायरेक्ट कराएंगे और उसके बाद राठौर से हमारे वीर अशोक भाई राठौर आए हुए हैं तो मैं उनका नाम दूंगा तो बात रखेंगे। अशोक भाई राठौर। मानसी भाई वर्मा जो हमारे बीच में है वो बंद कराएंगे। मानसी भाई वर्मा। जय जी। इससे पहले हमारी मुख्यमंत्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को समय समय पर बहुजन समाज में तमाम को दिवाकर क्रांतिના આજે 208માં સૌપ્રથમ આપ તમામ શુભકામનાઓ અને કચ્છ જિલ્લા ડિસ્ટ્રિક્ટ દ્વારા આ ઉપલક્ષમાં આજે ત્યાં રાખવામાં આવ્યો છે તેમને પણ ખૂબ અભિનંદન। આમ તો લગભગ હવે મારે કાંઈ કહેવાનું બચતું હોય એવું લાગતું નથી, કારણ કે મારા પહેલા અમે જેટલા પણ આ વિચારધારાના બીજો જેમને વાવ્યા છે અહીંયા જિલ્લામાં એમને પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યા છે એવા તમામ અનુભવોને આ બાબતે વાત કરી હશે। પણ આવા કાર્યક્રમો એટલા માટે આયોજિત થવા જોઈએ કે સમાજના જે નવયુવાનો છે એમને ખબર પડે કે અમારો ઇતિહાસ શું
पहुंचो ने आज आपने कई दिशा में जई રહ્યા છે भीमा कोरेगांव क्रांति मात्र युद्ध नहीं આમ તો ભારતમાં અનેકો યુદ્ધ થયા અનેકો લડાઈ થયા પણ ભીમા કોરેગાંવ હતું એ જાતિ વ્યવસ્થા સામે અન્યાય અત્યાચાર સામે સીધો પ્રહાર હતો તો ખરેખર વિચારવા જેવી બાબત છે કે 30,000ની સેના સામે 500 લોકોની સેના લડવા જતી હોય અને એવા કુમારી ભર્યા જે આપણામાં યોદ્ધા હોય તો તે એક બે લોકોના નામ સામે ભાગી બેઠા ભાગી જતા હોય અને જેમ નારણભાઈએ કીધું કે પછી ત્યારે સંકલ્પ લેવામાં આવે છે ખરેખર હવે આખા રાજ્યમાંથી પેશવાઈ ખતમ કરવાની છે અને આ સંકલ્પ જ્યારે પેશવાઈઓના કાને સંભળાતા એમના ઝંડા ઉતરાવી નાખતા હોય એ લોહી જ્યારે આપણામાં વળતું હોય ત્યારે આપણે આજે ખરેખર કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ જોવાનું મહત્વ મારું માનવું છે કે આવા કાર્યક્રમો સતત થવા જોતા હોવા જોઈએ જેમ બાબા સાહેબ આંબેડકરે વાત કરી હતી કે જાગૃતિનો દીપક નિરંતર પ્રજ્વલિત રાખવો જરૂરી તો જે પણ આપણે જેટલા પણ લોકો વધ્યા છીએ જેટલા પણ લોકો આ વિચારધારાઓમાં સમજે છે એ આપણે સતત આ કાર્યક્રમો આખા જિલ્લામાં આપણે ગામડે એક સમય હતો કે કોઈ કાર્યક્રમ જિલ્લામાં થતો એટલે મેં રાપરમાંથી 200-500 લોકો આવતા અને આજે 5-10 લોકો આવીએ છીએ પણ છીએ એટલા આવીએ એમ જેટલા પણ લોકો આપણે સતત એવું નથી કે આપણે અલગ બનાવવાનું છે અલગ જિલ્લાઓ બનાવવાનું છે ભાવ લેવો છે આપણે ગાવાની જરૂર આપણે બધા લોકો સામાજિક તાકાતથી મજબૂત સંગઠનનું બની નિર્માણ થાય કારણ કે આ સતત જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો ન થતા હોવાના કારણે અમારા જેવા યુવાઓને ક્યાંક અલગ દિશામાં જવું પડે પણ અમે આજે જ્યાં છીએ ત્યાં કાયમી અમારી જગ્યા નથી અમારી કાયમી જગ્યા અમામ પુરુષોના વિચારધારાની છે અમારી કાયમી જગ્યા બામ સેવમાં છે અમારી કાયમી જગ્યા બાબા સાહેબ આંબેડકર તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ સમતા સ્વતંત્રતા મજબૂતા અને ન્યાયની તરફ કરવામાં છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તત્વોડાઈ ક્યાંક ને ક્યાંક હતાશ થઈને ક્યાંક જવું પડતું હોય પણ અમારી કાયમી જગ્યા ત્યાં તો નથી તમામ આગેવાનોને વિનંતી કરીશ કે ખરેખર આપણે જે જાગૃતિ જોશ બાબા સાહેબ આંબેડકર ચાલુ રાખવાની અને આપણા કને ઇતિહાસ છે આપણા કને મહાપુરુષો છે તમામ ઉપર ભારે પણ એવા એક બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારો છે આ વિચારધારા સમાજ ખરેખર સમાજ પ્રગતિશીલ હોવો જોઈએ 28,500 લોકો મારે શપથ એક ધારે બે ટુકડા કરાવવાનો સમાજ આજે પોતાના અસ્તિત્વ માટે લડાઈ લડતો હોય આજે આપણે ખરેખર લોકતાંત્રિક દેશમાં આજે ભારત વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી લોકતાંત્રિક દેશ ધરોહરમાં આવ્યો અને અહીંયા આપણે આજે બંધારણ બચાવવાની વાત કરવી પડે ખરેખર આ સમાજ માટે કલંકની વાત કરાય કારણ કે બંધારણ બચાવવાની વાત ન કરવી પડે આવા ઇતિહાસ આપણી પાસે હોય અને કોઈ એવી વાત કરતા પણ હો વખત વિચાર આવવો પડે કે અમારે મનુસ્મૃતિ પર રાજ કરવો પડે તરત ભીમા કોરેગાંવ પડે શુદ્ધ સંગ્રામના મગજમાં યાદ આવવું પડે આ વિચારધારા સમાજના દરેક યુવાઓમાં પહોંચાડવી પડશે અને આ ઉપરતું લોહી ભીમા કોરેગાંવનું સતત ઉપરતું રાખવા માટે આપણે નિરંતર કામ કરવા પડશે મેં કીધું કે આપણે એ બહુજન સમાજમાંથી આવીએ જેને આ ભારતને અને દુનિયાને હજારો સંતો હજારો ગુરુઓ હજારો એવા મહાપુરુષો છે કે જે અખૂટ જ્ઞાનનો ભંડાર છે જ્ઞાન જ્યારે ખતમ ના થઈ શકે અને જ્ઞાનની કોઈ વ્યાખ્યા ના થઈ શકે એવા સમાજમાંથી જ્યારે આપણે આવતા હોય ત્યારે ખરેખર સંગઠિત મજબૂત સંગઠન ઊભું કરી અને શક્તિશાળી સમાજનું નિર્માણ કરવાનું હોય આ દિશામાં આપણે સતત કામ કરતા રહીશું ભીમા કોરેગાંવના લોકોએ સિનિયર કાર્યકર્તાઓ આગેવાનો પણ વાત સાંભળ્યા છે હું એક વિષયનો નાનકડો સૈનિક છું એટલે મારી પોતાની વાત યોગ્ય નથી એક વાત વિકસિત કરવા પણ જતા તમામ કરબત પ્રાપ્ત સાથે પહોંચતા આજે સમાજનો યુવાન ક્યાંક અલગ દિશામાં જઈ રહ્યો આપણે બધા લોકોએ સંકલ્પબદ્ધ થઈને કાર્ય કરી છે અપેક્ષા સાથે આવા કાર્યક્રમો ચાલુ થતા રહે એ મારી વાત આભાર ધન્યવાદ જય ભીમ જય ગુજરાત ધન્યવાદ
अभी मैं आमंत्रित करूंगा FMD का प्रिंसिपल ऑफिसर सर तो बात करेंगे। आज के इस 2008 में शौर्य दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ और जितने भी बहुजन महापुरुष है संत है उनको हम लोग नमन करते हैं। 1 जनवरी 1868 को जो मैं समझता हूँ जो युद्ध हुआ और जिसमें 500 योद्धाओं ने 28,000 योद्धाओं को मैं समझता हूँ भगाया से अपना विजय प्राप्त किया। इसी अवसर पर हमारे संविधान के निर्माता महापुरुष महामानव 1 जनवरी को कोई 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते थे तो यहाँ पर जाकर वो योद्धाओं को अभिवादन करते और अभिवादन कर एक संकल्प था उनके में सामाजिक आर्थिक राजकीय अगर आप उस लड़ाई में शामिल होना है, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय के आधार पर लोकतांत्रिक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बनाना है तो उसी की याद में वहां पर जाते थे। और बाबा साहब ने लिखा था अपने खुद में हाथ से लिखा था कि 1757 में जो प्लासी का जो लड़ाई हुआ था युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव के साथ में जो लोग थे जिन्होंने उनको जिताया वो भी गए और इसमें भी 1818 में योद्धाओं ने भाग लिया वो मार समाज इस समाज से बाबा साहब खुद बिलोंग करते और एक बड़ा मैं समझता हूँ विजय भी और उसके साथ साथ संकल्प जीत इस संकल्प जीत के आप सभी को बैठे हुए लोगों को समझना है कि किस रास्ते पे जा रहे हैं क्या करना है हमें अगर अच्छा देश अच्छा राष्ट्र बनाने का है इसमें सामाजिक स्वतंत्रता हो आर्थिक समता हो उसमें तो हमें क्या करना है इस दिन का आपको ज्ञान दिलाता है संकल्प दिलाता है। मैं समझता हूँ ये संकल्प दिवस हम होते हैं और इसी मैं ज्यादा वक्त लेती हूँ आप क्या आप अपने मन में क्या विचार है क्या बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इस देश किस तरह बनाने जा रहे हैं हमें हमको हमारे भूतकाल में जाकर उसके ऊपर समीक्षण करना है तो हमने क्या किया क्या नहीं किया और क्या करना है तभी तो सशक्त राष्ट्र बन सकते जो हम चाहते हैं आगे इसी शब्दों के साथ तो मैं आप सभी को भी एक बार शौर्य दिवस के ऊपर 2008 में विजय शौर्य दिवस को शुभकामना देता हूँ और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। आज का आपका एक नया दिवस पहला दिवस नया साल का तो सुखमय रहे पूरा साल सुखमय रहे पूरा दिन तक आप पूरा 365 दिन सुखमय रहे शांति में रहे और संघर्ष करते रहे अन्याय अत्याचार प्रतिकार जो समाज को होता है उसके प्रति अगर आप लड़ते नहीं तो उसके लिए कोई आप जवाबदार इंसान जवाबदार नागरिक नहीं इसलिए जरूरी है आप अपने आप को आपके संवैधानिक तत्वों को समझिए और उसके द्वारा अपना जहाँ पे भी इस विभाग में काम करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट उस विभाग पर आप अपना एक रिश्ता निभा सकते हो कि मुझे क्या करना है सशक्त राष्ट्र बनाना। धन्यवाद। जो अपने बीच आए और बात होती अभी इस कार्यक्रम को आभार रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली भारत को लेकिन सॉरी माफ करना एक जो स्कूल के शिक्षक है
नारायण भरत भाई कुशवाहा जी वो भी बंदा कुछ और बता सकते हैं केवल बात जय भीम। ऐसा नहीं, ये भी पूरे हिंदुस्तान की जय भीम, जय भीम। ये गाड़ियों की आवाज नहीं आती, जय भीम, जय भीम। बस ऐसा ही, और थोड़ा हिंदुस्तान की जय भीम, जय भीम। आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको कहता हूँ कि हमारे शूरवीरों ने तलवार उठाई थी, हम हमारे बच्चों को कलम उठाने के लिए कहें, क्या कलम उठाओ। कलम उठाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं स्पोर्ट्स का टीचर हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके बच्चों को नेशनल पहुंचाने के लिए और एससी की परीक्षा हो या कोई भी होमगार्ड की परीक्षा हो या कोई भी तैयारी करानी फिजिकल ग्राउंड के लिए मैं मूल निवासी संघ की ओर से मैं आह्वान करता हूँ कि आपके बच्चों को मैं तैयार कराऊंगा, मैं तैयार कराऊंगा भरत मिश्रानी, मैं आगे ले जाने की शपथ देता हूँ। मगर मेरा जो एसपी और कांस्टेबल की परीक्षा थी उसकी फिजिकल ट्रेनिंग आज से शुरू होने वाली थी, मगर मैंने ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मैं 5 तारीख से शुरू करूंगा उसको। तो जितने भी आगे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, महिला या पुरुष कोई भी हो, वो ये जो ग्राउंड है शक्तिगढ़ ग्राउंड, वहां पर मैं चालू करूंगा शाम को 4 बजे से। तो जिन्होंने परीक्षा में फॉर्म भरा है मैं उसको 100% फिजिकल क्लियर कराता हूं, मैं आपको ये वचन देता हूँ। बस, थैंक यू, धन्यवाद, इतना ही मेरा कहना है। एक बार वापस से जय भीम। धन्यवाद भरत भाई जी अभी मैं आगे जी के लिए ड्यूटी बाबा जी को बुलाऊंगा तो आप करेंगे जय भीम, जय मूल निवासी। आज 1 जनवरी 2026 को कच्छ जिला मूल निवासी समिति से जो कार्यक्रम रखा गया है उसका अब जो तहसील में आए वो कच्छ जिले के तहसील से आए हुए वक्तागण और सामने बैठे हुए जो हमारे बहुजन लोग, आज ये कार्यक्रम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये सभा यही करता हूँ। धन्यवाद साथियों समाप्त हुआ और जिन लोगों को भी आगामी देना है और ये उपयुक्त काम को बंद जरूर कर रहेगा तो हमारे क्रांतिकारी लोगों को आगामी दिन में पेन भी रहती है तो वो काम कर सकते हैं हेलो जिस काफी बारे में बच्चे को अगर घर पे बोला देना है तो उन शिक्षक का नंबर 9426955516 तो वो आप नंबर दे सकते हो और भाई बतवानी कॉन्टेक्ट नंबर 9426955516 और फिर से मैं बोल रहा हूँ 9426955516 9426955611। वापिस से कह रहा हूँ 9426955611। और भी आपके समाज में इसको शेयर करते को उसकी फिजिकल तैयारी